Hello friends, how are you? Welcome to Code Curious YouTube channel. So today we are going to study problems based on binary search. So binary search already I have studied yesterday last lecture. So if you have not, so please watch that video first, then comes to here. So it will be very easy to understand this problem because it's very very simple problems, but you should know first binary search. Okay, so what are the problems? you have given you have given an array, and some elements you have given like a sorted array surely, because the binary search work on sorted array only. So like example I can say I have 1 2 3 3 3 and 4 7 9. Okay, so you have given this you can see you have some duplicates element. Okay, if sometimes someone asks to search a search element, like a search number x I can say, yeah, you have to search 3, either it's present in array or not. Okay, so simply you can use binary search and you can means return index of elements present. But here you can see 3 appears how many times? It's appear actually 3 times. So you index wise if you see 1 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So if you are going to search by binary search, you don't know which index will return for the 3. It's like a 0. If you count here number of element, many, I think 7 9 element is there. So n is equal to 9. So mid, if you see mid first time, if you see mid first time 9 by 2, sorry 9, how 9 not 8 is there. Okay, because 7 index I have na last index. So total number of element will be 8 only. So 8 element I have. So 8 by 2 yani ki 4 means you will get fourth index actually, when you will search from the binary search. Okay, sometimes you get element if kinds of like a until the 4 only. Okay, you have only this array. So what will return for by the binary search? 0 1 2 3 4 5 6 element. 6 by 2 and means 3. 6 by 2 means 3. So you will return this index actually. So it means you are returning middle index value. But sometimes any means problem you will means you will require to get index of first occurrence or last occurrence. Okay, so we will means here study problems like find first occurrence of element, find first occurrence, and last occurrence. Okay, and other problem also we will learn here, count total element or equal to जो भी है equal to x, whatever you are searching for. So I need to count here how many times appear that particular element that you are searching. Okay, so these three problems first we will means study here. So if you see here how will go, means we will use here simply binary search. How many means ways you can do here, simply nav approach you can do simply using nav approach, and you can simply find out. Already I told you means it will take means here what we are playing here for the we are playing on the
complexity actually. That's why we are using different approaches. So here, if you see order of n, using naive approach you can search simply. So we are going to search by binary search. So यहाँ पे already I've told you binary search, or if I show you, I think, I don't know, I have removed already tab. No, I think I should not remove. Yeah, I can show you again binary search. I have already, because I don't have to write again same thing. Okay, so you if you I had used actually here, what I means iterative approach. So in iterative approach, mid you are getting from the mid if key, if that key is present in the mid, so you are directly returning. Okay, if your means key is less than, means what you are searching x value you are searching, and that is means exist in left side of the mid, means last will be mid only, mid minus mid not, because mid if mid we are comparing from the equal to, so it will already used this index, mid index already used, so mid we are using mid minus 1 actually. So, means end will be mid minus 1, because end already mid already used. So that's way, means if it is exists in right side of the array, right side, so we are doing here st is equal to mid plus 1. So यहाँ पे what will do means for if sometimes अगर ये मैच कर जाता है, मान लो आप यहाँ पे सर्च कर रहे थे, यहाँ पे आप सर्च कर रहे थे 3, तो ये वाला मैच कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला अगर मैच कर जा रहा है, तो हमें तो लेफ्ट वाला चाहिए, तो मैं हमें नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मतलब अगर मैच नहीं कर रहा है, वो तो सिंपल है, वो तो सेम रहेंगे, उसमें देयर इज नो मीन्स वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग इन if it is not matching, means for this condition if you see, means here if you see, it means if it exists in left side, means it's not equal to mid element, searching element, search element not equal to mid, means there's we don't have to do anything actually here. Okay, and if it is right side exist, so again we don't have to do anything, but I have to do if elements means matches into the mid. Okay, what I have to do, means if elements match in any index, means if it matches here or here or here, anywhere, because I have three times. Okay, I so anywhere it can be matched, it depends on actually number of elements, how it appears. Okay, so यहाँ पे आप देखोगे तो थ्री अभी इस टाइम पे, अगर क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 4 है, 8 है, 8/2 करोगे तो 4 है, मीन्स मिड आएगा हमारा 4, तो यहाँ पे मैच करेगा। तो कहने का मतलब है, क्योंकि बिकॉज वी हैव सॉर्टेड एरे, तो अगर सेम एलिमेंट यू हैव सेम एलिमेंट्स इन एरे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लेफ्ट साइड मुझे जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, तो इट मीन्स आपके पास में चूंकि सॉर्टेड एरे है, तो सारे एलिमेंट जितने भी मैचेज एलिमेंट होंगे, 4 हो ऐसे ऐसे, तो ये एक साथ ही होंगे, ठीक है। अगर आपको 4 इतने बार भी है, अगर 4 यहाँ पे मैच कर रहा था, आपका मिड यहाँ पे अगर आया, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मिला तो राइट साइड में चेक करते जाना है कि क्या क्या 4, क्योंकि सारे 4 टुगेदर ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी 4 है, अगर मान लो मिड आपका ये आ जाता है, तो इसका मतलब अगर राइट साइड में जाना है, तो आप व्हाट यू विल डू हियर, तो आपको चेक करना होगा क्या ये मिड जो हमारा है एरे है, जो भी आपका एरे होगा, एरे का जो मिड है क्या हमारा इक्वल टू, क्योंकि मिड तो इक्वल टू है सर्च एलिमेंट, तो इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं क्या सर्च एलिमेंट इक्वल टू नेक्स्ट इमीडिएट राइट एलिमेंट ऑफ द मिड इक्वल टू है सर्च एलिमेंट की नहीं है, तो यहाँ पे यू कैन व्हाट यू कैन डू कंपेयर एक्चुअली थ्रू द इफ एरे मिड जो है एरे, बिकॉज इफ ए बराबर ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ए बराबर सी है, तो बी बराबर अगर हमें चेक करना, ए बराबर हमने कह दिया कि सी है ऑलरेडी, तो बी बराबर आप ए कहो या बी बराबर सी कहो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। बात एक ही पड़ता है, क्यों, बी बराबर आप बी बराबर ए हमने ए अगर ए बराबर सी हमने पहले ही कह दिया, क्योंकि ए और सी अगर बराबर है तो बी बराबर, आप चाहे ए चेक कर लो,
या आप बी बराबर सी चेक कर लो, बात एक ही पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वही है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स बराबर यहाँ पे क्या कर लिया, ऑलरेडी आई हैव कंपेयर्ड एक्स बराबर एक्चुअली मिड, ठीक है। एक्स बराबर क्या है, मिड है, ऑलरेडी आई हैव कंपेयर्ड। सो अब नाउ वी आर डूइंग ए मिड, जो हमारा है मिड बराबर क्या, मिड माइनस वन है कि नहीं है। अब मिड इंडेक्स नहीं कंपेयर कर रहे हैं, हमें एलिमेंट कंपेयर करने हैं, यहाँ पे एरे आएगा, ठीक है। तो बस हमें ये चेक करना है। तो वी आर डूइंग कंपेयरिंग है। एक बार इसको मैं हटाता हूँ। और ये दूसरा तरीका क्या, क्योंकि हम इधर मिड माइनस वन चेक कर रहे हैं, यहाँ से अगर मिड माइनस चेक करें तो इसका मतलब इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू गो लेफ्ट साइड ऑफ द मिड। और इफ यू कंपेयर लाइक दैट, लाइक ए, क्या मिड जो हमारा है इक्वल टू है ए मिड plus 1 means we are comparing right element of the mid, it means we are trying to go right side of the array। तो एक चीज मैं और एक बात बताऊं, जब भी आपके एलिमेंट्स मल्टीपल सेम टाइप के होंगे, ए बी सेम टाइप के ज्यादा एलिमेंट अगर हैं, तो इसका मतलब है इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग वन बाय वन एलिमेंट। इफ समटाइम्स इन वर्स्ट केस इफ यू हैव like for every element in array only same, means all element in array are same, so it means in the first time if you will get mid here। so एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि पूरे सारे ही एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ऑल एलिमेंट्स जो है सेम है, और यू आर सर्चिंग फॉर, सो मिड एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, समटाइम्स मिड यू विल गेट हियर और हियर, ओके। सो इफ यू आर मीन्स इफ यू आर मिड हियर एंड यू आर फाइंडिंग यहाँ पे क्या लेफ्ट अकरेंसेस, तो यहाँ पे लेफ्ट अकरेंसेस चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं, तो राइट तो हमें जाना ही नहीं, भले ही सेम एलिमेंट है, बट लेफ्ट अकरेंस फाइंड करो तो लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हम राइट की तरफ जाएंगे। देखो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें एलिमेंट्स को कैसे कब चेक, लेफ्ट की तरफ जाना कैसे है, ठीक है, लेफ्ट अकरेंस को फाइंड आउट कैसे करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला आपको क्या करना है, अगर लेफ्ट की तरफ जाना है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। अगर एलिमेंट मैच कर जाते हैं तो क्या करना है, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर अगर एलिमेंट्स इफ एम एरे जो हमारा है, एरे जो हमारा है मिड जो हम, अगर एरे मिड जो है बराबर, हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि एक्स है, ठीक है, उस कंडीशन में। बाकी दो दो कंडीशन लेफ्ट राइट वाली वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें कुछ करना ही, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बट यू हैव टू एक्चुअली राइट कोड इनसाइड दिस कंडीशन ओनली। सो अगर ये मैच कर जाता है, हमने कह दिया ये ए बराबर हमारा सी है, तो अब हमें बी बराबर चेक करना है, ए चेक करना है, चाहे बी बराबर आप सी चेक करो, बात एक ही है, ठीक है। तो वही वाला हम कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं कि हमें हमें चेक करना है इफ एरे मिड जो हमारा है, क्या एरे का मिड, अगर हमें लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इफ एरे मिड बराबर एरे मिड माइनस वन है या नहीं है, ठीक। और राइट वाला अगर हमें जाना होगा तो राइट वाले में भी वही करेंगे हम, उसको भी दो दो ब्लॉक हमने यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, ये हम लाइन चेंज कर देते हैं, इफ एरे मिड बराबर एक्स है, तभी इसमें भी हम जाएंगे और हम चेक करेंगे इफ एरे मिड बराबर, अगर एरे मिड प्लस वन है या नहीं है, ठीक। तो यही दो चीजें हमें कंडीशन चेक करनी। अगर देखो अगर ऐसा है, मान लो अगर ऐसा है, तो आपको क्या करना होगा, अगर एलिमेंट सेम निकल रहे हैं, ठीक है, अगर सेम नहीं निकल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सेम अगर हैं तो क्या करना होगा, तो अगर सेम हैं तो अगर आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हो तो अगर रिकर्सिव कॉल कर रहे हो तो जो फंक्शन कॉल कर रहे होगे आप जो भी फंक्शन कॉल कर रहे होगे, मान लो एरे आपका जा रहा था और यहाँ पे एरे जा रहा होगा और एरे फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जा रहा हो, इंडेक्स जा रहा होगा, तो ठीक है, तो स्टार्ट और इंड जा रहा होगा, ठीक। तो यानी कि स्टार्ट, अगर यहाँ पे राइट, चूंकि हम यहाँ पे क्या करें राइट है, ठीक, राइट वाला है, तो राइट साइड हमें जाना है, राइट साइड वाला चेक कर रहे हैं तो कम मैच हो गया, यानी कि हमें राइट साइड जाना होगा, ठीक। तो मिड प्लस वन, यानी कि मिड प्लस वन यू कैन डू,
मिड प्लस वन कॉमा इंड जो भी आपका होगा, ठीक, वो वाला। तो इस तरीके से कॉल कर दोगे। अगर ये मैच यहाँ ये वाला होगा, अगर ये वाला होगा तो फंक्शन कैसे कॉल होगा? एरे जो हमारा होगा कॉमा और स्टार्ट जो भी आपका होगा एस टी कॉमा मिड माइनस वन। एक चीज़ और देखना, यहाँ पे एक एक करके हम जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट में हम लोग एक एक करके पीछे इंडेक्स को बैक कर रहे हैं। सो यहाँ पे इस तरीके, दिस वन, दिस वे वी कैन डू इफ यू आर यूजिंग इटरेशन, iterative way, so you can use here simply mid is equal to mid minus 1, okay, and here you can use mid is equal to mid plus 1. Both means in iterative, this one for recursive, this one for iterative approach, okay. So now what I can do here, so okay, so if in one thing you can also match actually, if elements, मान लो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अगर एलिमेंट्स मान लो एरे आपके पास जो दी गई है, इफ़ यू हैव सम एरे एंड मान लो कि सर्च आपका एक ही बार सिंग वन टाइम यू आर सर्चिंग फॉर वन, ठीक, यू आर सर्चिंग फॉर वन। तो इससे इफ एलिमेंट्स जो मिड जो आपका आता है, मिड इफ you are actually sometimes you are searching for left only, okay, for the left you can say, I think, and I can explain here only. You have 1 2 3 4 5 this way, okay, and you are searching for x is equal to 1, means आपका एरे जो मिड जो आया है बाय चांस किसी टाइम पे जो मिड आ गया, मिड बराबर वन, मिड बराबर आपका जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, ठीक, और ये मैच भी कर रहा होगा, ये एलिमेंट से मैच भी कर रहा होगा। तो अगर मिड आ जाता तो आप लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते हो, ठीक, मिड आ जाता है तो लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते हो। तो मिड, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना होगा पहले से ही कि एरे जो हमारा है, एरे जो क्या कहते हैं, तो सॉरी, क्या हमारा ये मिड जो है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है या नहीं है, क्योंकि अगर जीरो नॉट इक्वल टू, अगर इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकते हो। for left you have to check, if you are going for left, so you should check for first this one condition also. If you are going for right side, if you reach sometime this index and it means 0 1 2 3 4 fourth index, so you have to check क्या मिड नॉट इक्वल टू, मिड नॉट इक्वल टू यानी कि n माइनस वन है या नहीं है, क्योंकि मिड माइन अगर इक्वल टू n माइनस वन ऑलरेडी है, so you can go for right side and you are comparing right side n plus 1, it means you will get actually index out of bound exception. That's why for safety purpose you have to use this one also, okay. One thing again I can tell you, another condition you can match inside SEM. We are going means everything we are doing actually you can understand, we are everything what we are doing inside mid एरे जो भी है इनसाइड दिस कंडीशन ओनली, ठीक, इफ एलिमेंट्स मैचेज। तो एक चीज में यहाँ पे सिंपली ये भी आप कर सकते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर रिकर्सिव और इफ यू आर गोइंग फॉर इटरेटिव, simply if in one condition also you can match. First, if mid, if sometimes mid बराबर लेफ्ट, यू आर गोइंग फॉर लेफ्ट, इफ मिड बराबर जीरो आ जाता है, इफ मिड इज इक्वल टू जीरो आ जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, इफ एरे मिड, एरे मिड नॉट इक्वल टू एरे मिड माइनस वन, ओके। अगर एरे मिड नॉट इक्वल टू, मान लो आप सर्च कर रहे थे थ्री, ये तो एक कंडीशन बता दिया, आप वन सर्च करें तो ये वाला कंडीशन के थ्रू आर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, तो यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे आप सेम रिटर्न कर दोगे जो भी एलिमेंट होगा रिटर्न। तो आप सिंपली यू कैन रिटर्न एक्चुअली फ्रॉम हियर आल्सो, यू डोंट हैव टू मैच अदर कंडीशन, इल्स कंडीशन। इल्स में क्या करोगे, व्हाट विल डू फ्रॉम इल्स, it means if it means in the else means left elements matching with the mid element actually, okay. So for that either you can call recursive function call or you can update your mid,
update your mid or last, update your last, sorry, update your last or start. Okay, accordingly you are checking for left or right. Just with the if you, because here we are means understanding for the left, so it means left means end. So end updated by mid minus 1, mid minus 1 else condition में. For it recursive you can call recursive call, or iterative you can update mid. Okay, so here only you can return mid, because why we are returning, because mid minus 1 actually not matching with mid. तो इसका मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट है ही नहीं, या अगर एलिमेंट है थे भी इस तरीके से 1 2, मान लो 3 3 और 4 था, पहली बार में 3 यहाँ पाया, दूसरी बार मैच कर चुके हैं यहाँ पर, जब तीसरी बार आओगे तो ये वाला और ये वाला कंपेयर करोगे ना, you will compare 3 and 2, but it is not equal, so you can simply return this 3 index. Okay, that actually uh, that were the problem, you can say, what we are learning here actually. Okay, so कहाँ पे थे हम लोग, ये तो इंडेक्स ही चला गया हमारा एक्चुअली, कहाँ, अब मुझे लगता है ये स्वैप इसमें जाने लगा, 10 थे। ओके, 8 वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम बाय द वे अगर देखा जाए तो हम लोग पूरा अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर में, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इधर से लेफ्ट वाले को रिमूव करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम पहले हम पढ़ चुके हम लोग हैं, इनका अब कोई यूज नहीं है। शायद मुझे लगता है आप बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। लेफ्ट में अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है या राइट मोस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, दोनों तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब हमें अदर प्रॉब्लम की ओर जाना है। अब देखो ये सही है, 9 अभी भी नहीं आया वहाँ पे, ये हम ऑलरेडी, अच्छा ठीक है, इसको बना रखते हैं। हाँ अब सही है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे थे, इसमें यहाँ से स्टार्ट किए थे। तो लेफ्ट के लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट हम दोनों दोनों टाइप के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। ये वाला है 1 2 3 5, एक टैब आई थिंक हम रिमूव कर दिए हैं क्या, नहीं यही वाला था आई थिंक, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट वाला पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट occurrences, find first occurrences already, I have I think understand, and last occurrence also I have understand, but now we are going to work on count total element। देखो यहाँ पे अगर हम पूरा बार बार सॉल्व करें मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता, बट हाँ एक बार हम कोडिंग में जाएंगे सिस्टम पे आईडी में, तो वहाँ पे हम लोग एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम सारे तरीके से बता देंगे, बट यहाँ पे बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, मेन कंडीशन जो थी वो मुझे समझाना था मेरे मतलब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं काउंट टोटल एलिमेंट इक्वल एक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको टोटल एलिमेंट फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स अकरेंसेस ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे टोटल एलिमेंट की जगह यू कैन से फाइंड ऑल अकरेंसेस ऑफ, काउंट अकरेंसेस यहाँ पे लिख सकते हो, काउंट occurrences of x। You have to find count occurrences of x actually। okay, तो यहाँ अब ये कैसे कर सकते हो, मान लो यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं, काउंट यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, काउंट occurrences ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए सारी सेम टाइप की प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको बार अलग अलग लेक्चर में बनाऊँ, तो इसीलिए मैं सेम लेक्चर में ही बता देता हूँ। यहाँ पे अक्रेंसेस की बात है, 1 आग आपके पास है, 3 2 है, 3 मल्टीपल टाइम्स यू हैव, ठीक, एंड 4 5 7 ऐसे करके यू हैव सम एलिमेंट्स। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अक्रेंसेस, मीन्स अगर एक केस तो ये हो गया, ठीक, एक केस ऐसा भी हो सकता है 2 2 2 2 सॉरी 2 2, एवरी एलिमेंट इन एरे आर 2 ओनली, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो एरे है, दिस एरे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम, बट इन दिस एरे इफ यू सी all element, it means some elements are different but some elements have duplicates element, but you are here you are searching for x is equal to 3
एंड हियर यू आर सर्चिंग फॉर x इक्वल टू 2। दोनों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत ज़्यादा खेल है यहाँ पे। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज करते हो, सिंपली आप बताओ, सिंपली अगर आपने भी 2 मिनट 1 मिनट के लिए सोच लो, हम बाइनरी सर्च तो यूज कर ही सकते हैं, बट कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, इसीलिए लेफ्ट अकरेंसेस राइट अकरेंसेस। ठीक, यहाँ पर अगर देखोगे तो मान लो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इंडेक्स भी डाल देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मीन्स यू हैव 9 एलिमेंट, यानी कि n इक्वल टू 9 यू हैव, 9/2 मीन्स 4 यू विल गेट। ओके, 1 2 3 0 1 2 3 4 means you have mid coming here, but you have to count all occurrences। अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो श्योरली यू विल मीन्स गो थ्रू ऑल एलिमेंट्स ऑफ all indexes of 3 actually। first time you will go here, second time you will go here, means आपने सारे एलिमेंट्स को विजिट किया। पहले मिड यहाँ पे अकर किया, आप लेफ्ट की तरफ गए तब यहाँ पे अकर करेगा, फिर यहाँ पे जाओगे यहाँ पे भी 3 आएगा, तो इट मीन्स लेफ्ट साइड आपने सारे एलिमेंट्स पे विजिट कर लिया है, अगर लेफ्ट अकरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हो तो। अगर राइट अकरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हो तो इंडेक्स यहाँ पे जाएगा, फिर आप राइट में जाओगे तो यहाँ पे जाएगा, तो इट मीन्स you are visiting all elements, all elements of means three all indexes of 3 by doing left and right both occurrences, left occurrences and right occurrences, IGHT। ओके, तो यहाँ पे अगर लेफ्ट अकरेंस करोगे, राइट अकरेंस करते हो, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट पे विजिट कर जाओगे, तो इसका मतलब है टोटल काउंट आप इजिली पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पता कर सकते हो। तो अब आई थिंक ऑलरेडी आप बहुत से लोग जिस पढ़ रहे होंगे जो स्टार से वीडियो समझ चुके होंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट अकरेंसेस कॉल करोगे, क्या करोगे, लेफ्ट लेफ्ट अकरेंसेस कॉल करोगे, लेफ्ट अकरेंसेस कॉल करोगे, एक एक करके विजिट करोगे, वन बाय वन यू आर विजिटिंग वन बाय वन लेफ्ट साइड एंड काउंटिंग ऑल एवरी टाइम। ठीक है, वेयर array mid array mid is equal to x, you are counting every time। okay, so लेफ्ट प्लस अगर राइट कर देते हो तो आपके काउंट मिल जाएंगे। बट एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, बिकॉज लेफ्ट साइड अगर आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो इस ये एरे में देखते हैं, अगर हम लोग सिंपली वर्क क्यों कर रहे हैं बाइनरी सर्च में, बिकॉज वी आर ऑप्टिमाइजिंग थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कोई इशू नहीं है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एन भी कर रहे हो नैव अप्रोच में, तब भी स्पेस कोई प्रॉब्लम इशू, स्टार स्पेस वी आर नॉट यूजिंग एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पे स्पेस का कोई प्रॉब्लम, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग मिनिमाइज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखो सिंपली हम नैव अप्रोच में भी तो सर्च कर सकते हैं, वी कैन काउंट सिंपली नैव थ्रू नैव अप्रोच, वन बाय वन गोइंग थ्रू इटरेटिंग फ्रॉम 0 to n बाय द लूप। ओके, देयर इज नो इशू, आई वी कैन डू ऑर्डर ऑफ एन में। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर, अगर बाइनरी सर्च के थ्रू भी अगर हम ऑर्डर ऑफ एन में ही कर रहे हैं, तो इसका देयर इज नो यूज ऑफ बाइनरी सर्च। ओके, तो अगर यहाँ पे अब इस समय काउंट करो कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा बाइनरी सर्च हम कर रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों कर रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग के सम करने के लिए। तो अगर मान लो सम टाइम्स 1 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट वी हैव, 6/2 करेंगे एंड मीन्स 3 आएगा, 3 मीन्स 0 1 2 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, यहाँ से हम लेफ्ट साइड जाएंगे वन बाय वन, यू नो ऑलरेडी वी आर मीन्स गोइंग लेफ्ट साइड, इफ मिड इज इक्वल टू मिड -1 है, तो ये तो हमें जो इंड जो हमारा है, इंड हमारा मिड -1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे। मिड इंड हमारा कहाँ, इंड हमारा यहाँ हो जाएगा, स्टार्ट तो वहीं रहेगा, फिर हमारा इंड यहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट वही रहेगा, फिर हमारा इंड यहाँ पर आ जाएगा, स्टार्ट वही रहेगा, फिर मैच करेंगे, लेफ्ट साइड जा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट पे एक एक करके गए, यहाँ पे गए, इस जगह पे जाएंगे तो राइट एलिमेंट जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी सारे, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या हो गई, बाइनरी सर्च इट डजेंट मीन इफ यू आर यूजिंग मीन्स बाइनरी सर्च इट्स ऑलवेज
complexity will be order of log n only. No, because you are iterating each element one by one, so complexity will be same only, order of n only actually, not order of n. I can say if you are using some recursive approach, तो complexity होगी log n प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट मैचेज, कितने बार मैच कर रहे हैं एलिमेंट, सारे एलिमेंट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो मैचेज एलिमेंट के वेयर के इज इक्वल टू ऑलरेडी एन है। ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन में, और इस केस में के इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे के इज इक्वल टू ऑलरेडी एन है, इस जगह पे के इज इक्वल टू क्या है हमारा, के इज इक्वल टू 4 है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी जाके। तो अगर के बराबर एन आ जाता है तो श्योरली यू कैन से इग्नोर लॉग एन एंड यू कैन से ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी इट इज। तो यहाँ पे कुछ भी आप अच्छा नहीं कर रहे हो मीन्स, ठीक है। तो इस वजह से हम एक तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका हम बताते हैं, बाइनरी सर्च ही करेंगे, बट हम किस तरीके से करेंगे वो चीज़ डिपेंड करती है यहाँ पे। अगर एनी वे वी यू कैन डू लाइक दैट, यहाँ पे आप सिंपली इंडेक्स, इसकी लेफ्ट की इंडेक्स निकाल लो, ठीक है, किसी भी तरीके से लेफ्ट इंडेक्स निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट की इंडेक्स निकाल लो, ये जो अक्रेंसेस है इसकी लेफ्ट इंडेक्स निकाल लो, ठीक। मान लो इसकी लेफ्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, लेफ्ट इंडेक्स क्या है इसकी, 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट इंडेक्स हमारी 2 है। अगर लेफ्ट हमारा जो है क्या कहते हैं, लेफ्ट की इंडेक्स हमारी 2 है, हाँ, लेफ्ट हमारी क्या है, लेफ्ट इंडेक्स क्या है हमारी 2 है, यहाँ पे 2 है। अगर एनी केस अगर लेफ्ट इंडेक्स रिटर्न -1, तो इट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड लेफ्ट साइड, तो यू कैन रिटर्न सिंपली 0। ओके, सो जीरो काउंट 0 यू कैन रिटर्न। तो यहाँ पे लेफ्ट यू यू हैव 2 एंड राइट इंडेक्स अगर किसी तरीके से फाइंड आउट कर लो, क्या फाइंड आउट कर लो, राइट इंडेक्स, राइट इंडेक्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐसे थोड़ा सही तरीके से लिखूँ, अगर हम एक तरीके से अलगों की टाइप से, तो मान लो कोई तरीके से हमने फंक्शन कॉल किया था हमारा कैलकुलेट करने के लिए ऑल अकरेंसेस ऑफ एक्स, ठीक है, अकरेंसेस ऑफ एक्स मुझे फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेफ्ट कॉल किया, वाट लेफ्ट कॉल किया, LEFT, लेफ्ट में कोई भी हमने फंक्शन कॉल कर दिया, लेफ्ट फंक्शन, ठीक, लेफ्ट इंडेक्स ऐसे करके कर दिया, यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किया, तो यहाँ से हमें लेफ्ट इंडेक्स मिल गया, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, लेफ्ट 2 मिल गया, और राइट हमारा, अब इसके बाद में क्या करेंगे, अगर लेफ्ट हमारा क्या आ जाता है, इफ जो लेफ्ट जो हमारा है -1 आ जाता है, क्या आ जाता है, लेफ्ट इज इक्वल टू -1 आ जाता है, तो इट मीन्स यू कैन रिटर्न, क्या रिटर्न कर सकते हो, 0, 0 रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है राइट की, लेफ्ट साइड, लेफ्ट इंडेक्स तो मैंने पता कर लिया, अगर हम राइट इंडेक्स पता कर लेते हैं तो राइट हमारे क्या है, यहाँ पे 5 इंडेक्स है, ठीक। तो यहाँ पे हमें राइट इंडेक्स ऐसे पता करेंगे, यहाँ पे तो आपको रिटर्न ही मारना होगा, ठीक, राइट IND ही करते हैं केवल, ठीक है, राइट इंडेक्स पता करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे। अब राइट इंडेक्स जब मुझे मिल जाता है, अब यहाँ पे देखो टोटल काउंट हम कैसे निकालेंगे, हाउ विल कैलकुलेट टोटल काउंट अकरेंसेस बाई द लेफ्ट इंडेक्स एंड राइट इंडेक्स। द लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स आई हैव 5 और यू कैन यू नो ऑलरेडी यू हैव 4 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 टाइम पर कर रहा है, जो अकरेंसेस हमारे पास कितने बार है, एक्चुअली 4 टाइम्स आ रहा है। तो 5 माइनस अगर हम 2 करते हैं तो क्या आएगा, 3 प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 करने हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली लॉजिकली भी समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड हियर, बिकॉज एलिमेंट्स appears at 2 index also, so if you are reducing by 2 it means you are excluding this one, actually you are excluding somewhere 2, so that's why actually यहाँ पे 5 index means in 5 index also I have
elements, and second index also I have element, actually same element. So it, that's why means we are doing +1 to include that index element. Okay, because we are subtracting. Subtraction means अगर आप दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये भी सब्ट्रैक्शन में चला जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। आप यहीं तक काउंट कर रहे हो तो इसको भी इंक्लूड करना है तो +1 करना पड़ेगा। या फिर आप सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो तो -1 करके करो, L-1 करो, तो आपको ये वाला यहाँ तक सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने किया, व्हाट आई हैव डन, राइट इंडेक्स मैंने फाइंड आउट किया, तो राइट इंडेक्स फाइंड आउट किया। तो यहीं पे हमारे पास लेफ्ट चूंकि ऑलरेडी अब कैलकुलेटेड, तो लेफ्ट कर दो LEFT कर दो और +1 कर दो। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। कितना सिंपल था ये हमारा पूरा हमारा रिकर्सिव हमने कॉल ही लिख दिया है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई हैव डन ऑलरेडी। यहाँ पे लेफ्ट वाला जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी टोल्ड यू लेफ्ट हाउ विल कैलकुलेट लेफ्ट अकरेंस, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ विल कैलकुलेट राइट अकरेंस। तो लेफ्ट अकरेंस में लेफ्ट इंडेक्स पे चले जाओगे, राइट अकरेंस में राइट इंडेक्स पे चले जाओगे, राइट माइनस लेफ्ट कर दोगे, एंड you will get here the result as the occurrences of element. Okay, so and I think one more problem I have, same type only, so we can do, I think this one also, count ones in a sorted array, binary, count one in a sorted binary array. Okay, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, काउंट 1 इन सॉर्टेड बाइनरी एरे। आपके पास में बाइनरी एरे दिया गया है, 1 आपको काउंट करना है। अब एरे किस टाइप का दिया गया है, क्योंकि ये देखो है सिंपल सी प्रॉब्लम, पर इंटरव्यू में आपसे पूछा जरूर जाता है, ये पूछा जाता है इसलिए बहुत। आपके पास में बाइनरी यू हैव गिवन मीन्स बाइनरी टाइप एरे, 0 1 0 1 1, because you have sorted, so you will get same type only. Okay, sorted element binary array also you'll get sorted only. Okay, it doesn't mean you'll get actual binary for any element. तो यहाँ पे you have 0 and 1, two type element only, and you have to count actually. Same problem I think you can remind already. I have already means teach like problem where I searching nahi sorting, I think sorting. While we are going doing sorting, that time I think I already told you some type of problem, like a two occur element occurs 2 times or occur 1 time. Okay, so that time also actually whatever I had used, that was also same as a binary search only, because that time might remember I had used I had told you not used actually, but I told either you can use switch or you can use if else. You might remember if you have already studied, otherwise no problem. Okay, तो वहाँ पे भी मैंने एक्चुअली बाइनरी सर्च ही किया था ऑलमोस्ट, बट वहाँ पे मैंने बताया नहीं था क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं था बाइनरी सर्च। ओके, तो यहाँ पे आपको हियर यू हैव टू काउंट, क्या काउंट करने, एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ। काउंट 1 इन अ सॉर्टेड बाइनरी अरे, हमें काउंट 1 करने, 1 को काउंट करना है। तो यहाँ पे और सिंपल हो जाता है, आपको कोई अदर एलिमेंट को नहीं करना है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको x=2 सर्च करना है, x=3 सर्च करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये डिसाइडेड है, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड that you have only two type of element, 0 and 1. In their elements only you have to search 1, x=1. So you don't have to means make it generic, you can do simply hard coded like comparing 1 और 0। सिंपल कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मिड जो आ रहा, मान लो यहाँ पे आपके पास कोई फंक्शन था, ठीक है, यहाँ पे आपने मिड निकाल लिया, समथिंग सम एलिमेंट। अगर मिड या इसी केस में देखो 0 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, इट मीन्स यू हैव 9, 9/2 बराबर 4। यहाँ से लिखते जाते 9 9/2 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मिड यू हैव 4,
फर्स्ट टाइम मिड यू हैव 4 एक्चुअली, सो 4 यानी कि यहाँ पे आ जाओगे। ठीक, अगर 1 अगर आपको फाइनल काउंट करने हैं, अच्छा ऑल वंस हमें कंपेयर करने ना, काउंट वंस इन अ सॉर्टेड बाइनरी। अच्छा, तो यहाँ पे काउंट करने वंस इन सॉर्टेड बाइनरी एरे। लेफ्ट में जाएंगे बिकॉज मिड यू हैव फोर्थ इंडेक्स, एंड लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे यहाँ पे अगर कंपेयर कर तो इफ़, इसको कई तरीके से किया जा सकता है। इफ़ मिड अगर हमारा, अगर मान लो मिड मिड बराबर अगर जीरो आ जाता है, ठीक, क्या आ जाता है, इफ़ मिड बराबर जीरो आ जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है इफ़ मिड बराबर जीरो इट मीन्स हम लेफ्ट की तरफ तो मैच ही नहीं करेंगे। ठीक है, मिड बराबर अगर जीरो आ जाता है, मिड बराबर जीरो नहीं, मिड बराबर जीरो नहीं, एरे मिड जीरो। ठीक है, मिड बराबर जीरो करोगे तो इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग इंडेक्स। ठीक, आई थिंक आप लोग इतना तो समझ गए हो, समझ ही सकते हो जब भी हम ऐसे गलती करते हैं छोटी मोटी। ठीक है, एरे मिड अगर आप कर रहे हो, एरे मिड बराबर जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरे मिड बराबर जीरो है तो इट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट की साइड आपको जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको, राइट साइड जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप एस टी जो हमारा है, एस टी स्टार्ट जो हमारा है, ये सिंपली आप मिड प्लस वन ही कर सकते हो। ठीक है, ये इटरेटिव अप्रोच में, रिकर्सिव में तो मेथड कॉल करोगे सिंपल। ठीक है, इसके बाद में अगर इफ एरे जो मिड है हमारे पास में, ये वाला हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आईडी में भी। ठीक है, इफ एरे मिड बराबर वन आ जाता है, ठीक है, मिड बराबर जीरो है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सिंपली कॉल कर दिया, राइट साइड में भेज दिया। ठीक, अगर वन आ जाता है बाई चांस, बट जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है, इस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि अगर आप राइट साइड जा रहे हो, मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा कि अगर आप राइट साइड जा रहे हो, ठीक है, तो राइट वाले सारे एलिमेंट आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट वाले एलिमेंट सारे आप काउंट कर पाओगे। अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो लेफ्ट वाले काउंट कर पाओगे। ठीक है, अगर लेफ्ट जा रहे हो तो लेफ्ट वाले कंपेयर कर पाओगे, अगर राइट जा रहे हो तो राइट वाले काउंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि देखो अगर यहाँ पे लॉजिकल थोड़ा सोचते हैं, हमें लेफ़्ट और राइट में यहाँ पे अगर मालूम आ गए, क्या हमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जाने की ज़रूरत है भी या नहीं भी है, ये चीज़ पहले देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो हमारा मिड कहीं पे यहाँ पे आ जाता फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो चूंकि वन हमारे लेफ्ट साइड में भी है और वन हमारे राइट साइड में भी है। ठीक है, कहाँ कहाँ है, वन जो हमारे हैं वो लेफ्ट साइड में भी हैं और वन हमारे राइट साइड में भी है मिड के। तो इसका मतलब अगर हमें काउंट करना है तो लेफ्ट वो अक्रेंस और राइट अक्रेंस दोनों चेक करने पड़ेंगे। क्या ऐसा करना है, या हमें लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे एलिमेंट्स एक के अलावा कोई एलिमेंट बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट वन ही वन होंगे आसपास के। तो हम अगर बाई चांस हम ऐसा करें, अगर हम ऐसा करें किसी तरीके से कि हम अगर मिड हमारा हम लेफ्ट में ले जाते हैं, यहाँ पे मालूम सबसे फ़ायदा क्या है, क्योंकि जीरो इस टाइप की एरे आपको नहीं मिलने वाली है, जीरो वन जीरो जीरो वन 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 टू टू या थ्री थ्री, इस टाइप की एरे आपको नहीं मिलने वाली एक्चुअली। क्यों, ये एलिमेंट आपके एग्जिस्ट नहीं हो रहे होंगे। जब भी वन एरे आपको दिया जाएगा जीरो और वन का, ठीक है, ये यही है कि यहाँ पे ट्रिक है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही था। ठीक है, जीरो जीरो जीरो, और फिर बाद में यहाँ पे एक और आ जाता है, फिर वन वन वन, इस तरीके का ही आपको दिया जाएगा। इसका मतलब दो ही एलिमेंट टाइप के एलिमेंट जीरो और वन होंगे, तो यानी कि जब भी वन आएगा वो लास्ट में ही आएगा।
ठीक है, ये n होगा, n-1 इंडेक्स होगी ऑलवेज ही। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने n है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है यहाँ पे। तो लास्ट इंडेक्स हमारा ये होगा, और ये वाला जो हमारा क्या है, अगर हमारा, अगर हम लेफ्ट में चले जाते हैं, इसके लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे चले जाते हैं, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स क्या है, ये है। इसका लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स क्या है, ये है। अगर लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स हम सिर्फ फाइंड आउट कर लेते हैं, और राइट मोस्ट हमें ऑलरेडी चूंकि पता है, समझ रहे हो कि नहीं। यही यहाँ पे सबसे अच्छा ट्रिक की बात है, और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, चूंकि आपको ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट हमें, राइट मोस्ट ऑलरेडी पता है, लेफ्ट मोस्ट हमें पता कर लिए, यहाँ मान लो यहाँ इस केस में देखते हैं, इस केस में लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स जो है 3 है, और राइट मोस्ट की कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि n हमारे पास है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n बराबर क्या है 9 है, 9 हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर हम n माइनस कर देते हैं, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स क्या है 3 है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे n-3 कर दिया, तो 9-3 कर दो, कितने आते हैं 6 आ जाते हैं। क्या 6 बार आया, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 6 टाइम्स इस आकर। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, इसका मतलब अगर एरे मिड बराबर 1 आ जाता है, ठीक, इफ एरे मिड बराबर 1 आ जाता है, तो इसके अंदर मुझे थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है, एक कंडीशन और आप यूज कर लो। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि इफ, मुझे चेक क्या करना है, अगर 1 ऑलरेडी हम लेफ्ट मोस्ट में जा चुके हैं, ये चीज़ मुझे पता करना पड़ेगा ना, कि हम लेफ्ट मोस्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं या नहीं। तो अगर हम ऑलरेडी जा चुके हैं लेफ्ट मोस्ट, तो वो वाली हमें कंडीशन पता करनी होगी। कैसे, क्या हमारा अगर मिड मिड अगर हमारा बराबर अगर 0 इंडेक्स है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एरे जो हमारा है, या फिर एरे मिड जो हमारा है -1 बराबर 0 आ जाता है। ठीक, मैंने क्या कहा, मिड मान लो यहाँ पे आया, और मिड -1 क्या होगा, फिर ये होगा मिड -1 अगर 0 है, तो इसका मतलब इसके पीछे 1 है ही नहीं। ठीक, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट मोस्ट यही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न मार देंगे सिंपली। क्या मारेंगे, रिटर्न n माइनस मिड मार देंगे। ठीक, n माइनस मिड मार देंगे। अदरवाइज इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम सिम वही करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि इंड जो हमारा है वो मिड -1 जाएगा। बस, ये हमें सिंपल कंडीशन लगानी थी इस फंक्शन में। बाकी चीज़ें आपको पता ही है, मैंने जैसा कि बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। आपको मुझे लगता है पसंद ज़रूर आया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। और देखते हैं, एक बार कोड कर देते हैं, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाकी इसका सारे काम बाद में करेंगे। मैंने आईडी भी नहीं ओपन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिंपल हैं बट हैं थोड़ा ट्रिकी। सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग नहीं, सर्चिंग वाला पे हम थे, सर्चिंग वाला पैकेज मैंने बनाया था आई थिंक। नहीं बनाया है, चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं न्यू पैकेज। सॉर्टिंग को हटाते हैं यहाँ पे। मैंने इसको अलग अलग किया था, पता नहीं क्या, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने पिछली लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया ही था। काउंट अकरेंस है।
तो यहाँ पे आपके पास में दिया गया है एरे इंट एरे यू हैव 0 1 ऑन 0 कॉमा 0 0 1 कॉमा 1 कॉमा ऐसे करके आपके बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक, यू हैव गिवन दिस एरे एंड सिस आउट करते हैं डायरेक्टली। ठीक, सिस आउट क्या हमने मेथड बना दिया? ये कहाँ क्यों नहीं दे रहा भाई? हमने आईटी तो वही ओपन किया है। हैं? ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा भाई? इसका मतलब मेन मेथड नहीं बनाया मैंने, समझ रहे कि नहीं? ये सारी प्रॉब्लम होती हैं कभी कभार। अभी हम कहीं सिस आउट सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे हम लोग करते हैं काउंट अकर। ठीक, काउंट और यहाँ पे एरे पास करेंगे because we'll use iterative approach only, not recursive. Okay, so there is no problem, I can call directly by anyway. Okay, array dot length, we don't have to means pass 3 parameter here. यहाँ पे कैरी ऑटोमेटिकली हो गया, इंट रिटर्न करेंगे। तो ये जो मेन कंडीशन होता है वो तो आपको पता ही है। वाइल यहाँ पे एस टी निकाल लेते हैं, एस टी इज इक्वल टू 0 इंट ई डी इज इक्वल टू, हमने वहाँ -1 नहीं किया था तो जो भी है एन करते, यार लेन अच्छा नहीं लगता है, एन करते हैं यहाँ पे n-1 हमने कर दिया। ठीक, ई डी हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी? एस टी अगर लेस देन ई डी है, लेस देन नहीं, लेस इक्वल टू ई डी है। ठीक, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे कर दिया। इसके बाद में हमने क्या निकालना? वी हैव टू कैलकुलेट मिड, इंट मिड इज इक्वल टू एस टी प्लस ई डी। अब सेकंड वाला भी हम यूज कर सकते हैं, तरीका जो मैंने बताया था, ई डी माइनस एस टी डिवाइड बाई 2, ये वाला भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक, दिस वन। तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ मिड बराबर 0 है, व्हाट इज द मीन? व्हाट इज मीन? इट मीन्स mid is equal to 0, we can direct simply go for right side. Okay, so st is equal to mid plus 1, दो ही कंडीशन यहाँ लगनी है। इफ एरे, यहाँ पे मिड मैंने बोल दिया ना, मिड 0, अच्छा इंडेक्स की बात है ना, नहीं एरे इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। एरे एरे मिड अगर 0 है, ठीक है, एरे मिड 0 और एरे अगर मिड, क्योंकि दो ही टाइप के एलिमेंट है तभी हम इसे हार्ड कोडेड 1 कर रहे हैं। ठीक, एरे मिड बराबर 1 है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर एरे मिड इज इक्वल टू 1 है देन यू हैव टू राइट अनदर कंडीशन, इफ मिड बराबर 0। अब यहाँ पे मिड बराबर इंडेक्स यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इफ मिड इज इक्वल टू 0th इंडेक्स पे है और क्योंकि हम यहाँ पे नल पॉइंटर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड को हम एक्चुअली यहाँ पे एक्सेप्शन ना है इसलिए। ठीक है, प्रिवेंशन टाइप का टेक्निक है इसके लिए। और यहाँ पे देन वी कैन डू एरे because we are checking here mid -1, that's why we are doing before that इक्वल टू 0 है तो रिटर्न कर दो वाली। ठीक, और में क्या होता है, और कंडीशन में ये अगर ट्रू हो जाता है तो फिर इसको चेक नहीं करता है। ठीक है, इसलिए मिड -1 एरे मिड -1 अगर इज इक्वल टू है, इफ एरे मिड -1, हमें लेफ्ट मोस्ट वाला यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक, इफ एरे मिड -1 बराबर 0 है, क्या है? इफ एरे मिड -1 बराबर
जीरो है, इट मीन्स हम लेफ्ट मोस्ट में पहुंच चुके हैं, लेफ्ट मोस्ट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न मार सकते हैं, रिटर्न क्या कर सकते हैं, एन माइनस मिड। इल्स में क्या करना है हमको, इल्स में आई हैव टू डू, because we are not actually at the leftmost midpoint, so we are again iterating, okay, ed is equal to mid minus 1 कर देंगे। ये है सिंपल, कितना सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। कोई भी यहाँ पे देखो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न यहाँ पे -1 कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बग है कहीं पे तभी ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट है, 6 टाइम आकर हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये था सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं, न्यू लेफ्ट मोस्ट अकरेंसेस, लेफ्ट अकरेंसेस, ठीक है, वो वाला कर लेते हैं, लेफ्ट लेफ्ट अकरेंस, सॉरी मेन हो गया, और इंट एरे इक्वल टू, एरे मेरे पास है ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये पूरा ही कॉपी क्यों नहीं कर लेते हैं हम। यहाँ पे मुझे क्या दिया गया, एरे लेफ्ट करेंसी एन बराबर हम 5 कम है 15, 15 को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 16 भी एक बार और कर सकते हैं, 15, ठीक है। तो हमें 15 एन फाइंड आउट करना है, एक्स बराबर क्या है 15 है। तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स मीन्स हम सिस आउट कर सकते हैं, रिकर्सिव यहाँ पे भी नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल इटरेटिव यूज करेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहीं से डायरेक्टली हम सिस आउट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट आंसर्स ऑफ एरे कॉमा एन कॉमा एक्स। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने किया था एक्चुअली काउंट 1, यहाँ पे अकरेंसेस की जगह मेथड बना हुआ ऑल ओ एन ई एस, ये वाला मेथड कॉल करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा यहाँ पे मैंने डायरेक्टली 1 1 कर दिया, यहाँ पे मैं कोई भी सर्च एलिमेंट पास नहीं किया, ठीक है, सर्च एलिमेंट यहाँ पे पास नहीं किया मैंने, तो इसका नाम भी थोड़ा वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं लगता है। आप यहाँ पे आप कुछ भी पास भी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे हार्ड कोड 1 1 कंपेयर कर रहे हो, ठीक। अब इससे पता चलता है कि आप यहाँ पे ऑल 1 ही कंपेयर करें, इस वजह से आपने यहाँ पे पैरामीटर पास करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, ठीक है। थोड़ा मीनिंगफुल लगना चाहिए, भले ही हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे भी मीनिंग, पूरा मीनिंगलेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, ऑलरेडी आई थिंक यू नो, यू आर very much talented, okay। So array I have, n I have, x that I have to search, and leftmost index we are searching for here, and here I can return directly -1, there is no issue। int st, हम ये वाला कोड चाहें तो पूरा कम कॉपी भी कर सकते थे, इतना क्योंकि हम हर जगह सॉर्टिंग शॉर्ट क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं छोड़ो इसको। तो ये हमारा आ गया, रिटर्न हो गया। यहाँ पे व्हाट आई विल डू, अब नाउ वी यू हैव टू चेंज दिस टू कंडीशन, एक्चुअली completely you have to change, but I can modify without instead of removing, okay। I have made, and what is the agenda for this one means, okay, the two condition was same only, what all two conditions means, if array mid जो है, if
एक्स जो हमारा एक्स पहले रखते हैं, ठीक है। इफ एक्स जो है, इफ एक्स इज लेस देन है, इफ एक्स इज लेस देन मिड, क्या है एक्स जो हम जो सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग एलिमेंट इज लेस एग्जिस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द मिड, एग्जिस्ट इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिड। सो व्हाट आई कैन डू हियर, एस टी इज इक्वल टू मिड माइनस वन, स्टार्ट नहीं एस टी नहीं ई डी, ठीक, ई डी वी कैन डू सिंपली इल्स इफ x is greater than means x is exist right side of the mid element, तो ये राइट साइड एग्जिस्ट करता है तो इस इट मीन्स एस टी विल बी चेंज बाय मिड प्लस वन, देयर इज नो changes in these two condition, okay, everything, and here means array mid is equal to we can do simply k, अरे सॉरी के नहीं x we are using, so if array mid is equal to x then we have to decide what I can use here. So because you are using leftmost only, now you are at the place where 15 is matched somewhere, sometimes you can assume it's matches here, okay, if it matches here means you have to go left side of the array. तो एक चीज मैं ऑलरेडी चेक कर सकता हूँ कि इफ मिड बराबर अगर जीरो है, ठीक, बाई चांस ये 15 यहाँ पे होता और मिड बराबर जीरो हो जाता, या फिर दूसरा अदर कंडीशन, इफ एरे मिड जो है हमारा, यहाँ पे मिड कर देते हैं एरे मिड, अगर एरे मिड जो हमारा है, इफ एरे मिड नॉट इक्वल टू एरे मिड माइनस वन, अगर ये जीरो है या फिर नॉट इक्वल टू है, ठीक, मिड इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इट मीन्स हम लेफ्ट साइड नहीं जा सकते हैं, ठीक, लेफ्ट साइड नहीं जा सकते हैं। और इफ एरे मिड जो हमारा है, एरे मिड जो हमारा है नॉट इक्वल टू है मिड माइनस वन, लेफ्ट के मिड माइनस वन, इसको थोड़ा मिड करते हैं, ये थोड़ा अच्छा करते हैं, इसको ये वाला करते हैं, ठीक। इफ एरे मिड नॉट इक्वल टू एरे मिड माइनस वन, एरे मिड जो हमारा है नॉट इक्वल टू एरे मिड माइनस वन, तो इट मीन्स चूंकि ये मैच कर चुका है ऑलरेडी, आपको पता है एरे मिड जो है इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ पे सिंपली आप रिटर्न कर सकते हो मिड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज यू आर गोइंग लेफ्ट साइड, बिकॉज इट लेफ्ट साइड यू आर गोइंग, सो ई डी इंड जो है इंड इज इक्वल टू मिड माइनस वन, सिंपली। जीरो वन टू थ्री, थर्ड इंडेक्स इज लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, ओके। हमने यहाँ पे लेफ्ट गलत डाले, लेफ्ट राइट दोनों डाल रहे थे क्योंकि बार बार कोड, एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं और नया क्लास ही बना देते हैं। अब नाउ यू हैव टू फाइंड आउट राइट मोस्ट, ओके, लेफ्ट की जगह आप राइट कर दो यहाँ पे, राइट मोस्ट occurrences, what you have to change here, nothing, simply you are comparing, now mid is equal not equal to, अगर mid प्लस वन है, mid नॉट इक्वल टू मिड प्लस वन है, और यहाँ पे चूंकि राइट साइड जा रहे बिकॉज वी आर गोइंग कंपेयरिंग मिड प्लस वन, सो इन यहाँ पे हम लोग फॉर सेफ्टी पर्पज वी कैन यूज मिड, इफ मिड इक्वल टू है, मिड इज इक्वल टू एन माइनस वन है, ठीक। if mid is equal to n minus 1, so we can do actually mid plus 1, because if you do mid plus 1 it becomes n actually, so n means index out of bound exception, that's why we are doing that way, so it means simply you can return mid, otherwise you can do mid plus 1 simply, these two changes only solve your problem। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इनफाइनाइट लूप चल गया क्या, ओके।
इनफाइनाइट लूप चल गया। अभी हमारा एग्जिट पॉइंट नहीं हुआ कहीं पे भी, ये वाला मैच रिटर्न नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है। अच्छा, क्यों नहीं रिटर्न हुआ? अगर लेफ्ट, क्योंकि यहाँ से देखते हैं एक बार, हमने 15 मैच सर्च कर रहा था, 15 आया यहाँ पे। मेन ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मेन चीज़ यहाँ पे इफ़ इट मैच्ड मीन्स इफ मिड इज इक्वल टू, अगर मिड हमारा n-1 पे पहुँच जाता है, इफ मिड इज इक्वल टू n-1 और एरे मिड नॉट इक्वल टू एरे मिड प्लस 1, ये कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम आई थिंक। बट एन में तो कभी नहीं पहुंचेगा ना, ये तो नल पॉइंटर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड देना चाहिए। सम वेयर आई थिंक वी आर डूइंग रॉन्ग। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, क्लियर जल्दी नहीं समझ में आ रहा, तो आप डिबग कर सकते हो सिंपली, यू कैन डिबग। अच्छा, यहाँ से एक बार देख लेते हैं। इफ़ एक्स एग्जिस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द एरे, सो यू आर डूइंग mid-1। if x exists right side of the mid, you are doing mid plus 1। if x matches at the mid, so you are doing, यहाँ पे हम डिबगर लगा सकते हैं। इतना देखो, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का मुझे कोई मतलब नहीं बनता है, जब कि हमारे पास ऑलरेडी कोई एक उसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिबग एज कर देते हैं सिंपली, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको दो बार इंडेक्स मिड एक बार चेक कर लिया आपने, क्योंकि 3 आ रहा था, ठीक है, 0 1 2 3, और इसके बाद में आपने फिर से किया, अब हमारा मिड आ गया, मिड कम्स टू अगेन 3। वाई रिटर्निंग, ओके। इंड जो, ओके, यहाँ पे सॉरी, देखा ये प्रॉब्लम था, मैंने देखो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इन यहाँ पे मैं वो क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड वाला नहीं कंपेयर करा, क्योंकि कॉपी पेस्ट में यही होता है प्रॉब्लम। एस टी हमारा इंड की तरफ जाएगा, इंड मिड इंड जो हमारा वही रहेगा, बट एस टी हमारा स्टार्ट हमारा मिड की तरफ जाएगा, मतलब राइट साइड हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, वही है कॉपी पेस्ट में, तो देखो दिमाग नहीं लगाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे, दिमाग नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम तो आएगा। अब भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब एस टी हमारा मिड प्लस 1 हमारा जा रहा, एस टी इक्वल टू मिड प्लस 1 सही है। मिड क्यों फाइंड आउट क्यों नहीं हुआ? एस टी ई डी, यहाँ पे मैंने इंड, यहाँ पे क्या किया, व्हाट आई डन, इफ एक्स एग्जिस्ट लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड ऑफ मिड प्लस 1, अगेन आई एम डूइंग if it matches mid, so we are doing mid plus 1। चलो एक बार डिबग करना ही पड़ेगा फिर से, अगेन आई हैव टू डिबग ओनली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा मिड हमारा 3 है। अब देखते हैं यहाँ पे आता है जब ये इल्स में, क्योंकि श्योरली इल्स की में ही जाना चाहिए अब की बार, बिकॉज यहाँ पे ये कंडीशन मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। मिड और मिड प्लस 1, क्योंकि मिड बिकॉज वी हैव मिड एट विच पोजिशन हियर, सो मिड प्लस 1 ये इक्वल टू है, तो ये मिड नॉट इक्वल टू, पहली बात तो मिड इज इक्वल टू एन, क्या ट्रू है? नहीं है। क्या ये वाला कंडीशन ट्रू है? नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, हमारा यहीं पे आएगा, ठीक है कर्जन। तो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमारा कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। एस टी, अब एस टी हमारा हो गया 4। अगेन स्टिल देखो एस टी हमारा, आई वाइल आई हैव एस टी 4 एंड मिड कम्स टू 4, mid comes to 4 only, and again I think it come here only। हाँ सॉरी, मैंने गलती मालूम क्या किया था, वो मैंने हटा दिया था ना पहली बार ये -1, तो इसी वजह से -1 आ रहा था, बट फिर भी हम लोग डिबग कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिड क्या है, गलती तो आपको पता चलेगी, प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, बट स्टिल
we are doing debugging. Okay, mid 3 and mid becomes now 4 and now mid becomes 5 and return. तो फोर्थ इंडेक्स 4 क्यों रिटर्न हो गया? अभी भी मतलब 0 1 2 3 4 4 पे ही रिटर्न हो गया. Why it had written at index fourth only? इसका मतलब मालूम क्या, एक पहले मैंने मैच कराया है. इसका मतलब यार कहीं बार बार ये क्यों प्रॉब्लम आ रहा. सॉरी, रन ऑन सर्वर कर दिया मैंने. ये तो वर्क नहीं करेगा श्योरली. ठीक है, मिड n-1. अगर मिड जो हमारा है यहाँ पे x n हमने पूरा पूरा पास किया था ना, n पूरा ही पास किया था, सही तो है. बिकॉज अगर n मैं ये चाहता, आई एम थिंकिंग हियर इफ मिड कम्स टू n-1, अगर n-1 मीन्स, चलो एक बार मैं फिर से डिबग करता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली अगर हम यहाँ पे आते हैं और इस पे भी एक डिबगर लगा दिए हैं. ठीक है, इसके अंदर जाने वाला यहाँ पे चला गया. अब देखते हैं क्यों आगे इसके अंदर चला गया. मिड हमारा किस पे, 4 पे है. और यहाँ पे एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n, हाउ मेनी एलिमेंट आई हैव, 5. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है. और इंडेक्स, किस इंडेक्स पे हम लोग हैं, फोर्थ इंडेक्स. नंबर ऑफ एलिमेंट 5 ओनली वी हैव. तो इट मीन्स इट वाज करेक्ट आंसर 1 0 1 2 3 4. नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट आई शुड हैव 6. ओके, आई what is the wrong thing here, you know, because you my actually यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया. ठीक है, क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है 5 नंबर ऑफ एलिमेंट. अरे कॉपी पेस्ट है, वही मैं बता रहा हूँ ना. कॉपी पेस्ट कभी कभार यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अब इसको वजह से आप 5 मिनट समझ लो वीडियो के बढ़ गए फालतू के. ठीक है, कितने मिनट बढ़ गए, 5 मिनट बढ़ गए वीडियो. अब आ गया आंसर सही. ठीक, तो ये था आज का. यहाँ पे भी एन मैंने गलत नहीं ले लिया था इधर साइड, क्योंकि यहाँ पे भी गलत ही एलिमेंट था, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जा रहे थे, इस वजह से कोई इशू नहीं आया. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी इशू आता. तो ये हमारा प्रॉब्लम था. और आई थिंक अदर प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी, जो मैंने क्या किया हुआ है, ये दोनों लेफ्ट राइट आप यूज कर सकते हो. और बाकी आप यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख पूरा पूरा सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, आप देख सकते हो कोड पूरा लिख दिया था मैंने यहाँ पे. ये वाला सिंपल सा ये फंक्शन आपको क्रिएट करना है. यहाँ पे you have to create this function only, and you have to write this one and 4 line you have to write, third and fourth line, and you will get your answer. अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको. ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं. वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है. नेक्स्ट लेक्चर में. और लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब